Since you are attending my industrial hydraulics and pneumatics lecture, I am Professor Tanpure SP. Today we are going to see controlling of DA and SA cylinder, means how to control the double acting and single acting cylinders with the help of hydraulic circuit. Here this is the double acting cylinder. Double acting cylinder is having the two ports, this one and this one. This is the piston. This piston is reciprocating inside the cylinder. Okay, in order to move this piston we need to supply pressurized oil. Okay, so here we are going to see how to control the double acting as well as ASA single acting cylinder with the help of this hydraulic circuit. Okay, so here this is the hydraulic circuit. Let's see the different components of the hydraulic circuit. So here this is the reservoir. What this T indicate the tank. This is the tank, or we can say a reservoir. After that this F indicates a filter. This is the filter in order to trap the impurities. This P is nothing but the pump. E is the electric motor is coupled with the pump. This R is the pressure relief valve. Okay. This is the D. D is the direction control valve. This is the direction control valve. This is a 3/2 direction control valve. And this is the single acting cylinder. C is the cylinder. Okay, single acting cylinders. These are the components of any simple hydraulic system or hydraulic circuit. Before moving forward, there is one combined unit called as hydraulic power pack. Okay, hydraulic power pack. So what this hydraulic power pack contains? It contains pump, it contains electric motor, it contains filter, it contains this tank, it contains pressure relief valve. Okay, so all these are called as a combinedly called as a hydraulic power pack. Okay, तो hydraulic power pack जो है उसमें क्या क्या आता है? ये उसमें पंप आता है, इलेक्ट्रिक मोटर आता है, फिल्टर आता है, रिजर्वायर आता है और प्रेशर रिलीफ वाल्व. ये सब मिलके क्या तैयार होता है? हाइड्रोलिक पावर पैक तैयार होता है. हाइड्रोलिक पावर पैक कहाँ पे होता है? एट द बॉटम ऑफ सिस्टम. वेयर दिस हाइड्रोलिक पावर पैक लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ सिस्टम. सिस्टम के नीचे, सबसे नीचे ये होता है, बॉटम ऑफ द सिस्टम. तो इसका क्या काम है? इट सप्लाई पावर टू द सिस्टम. ये सिस्टम को पावर सप्लाई करता है. इसमें से ये जो हाइड्रोलिक पावर पैक है उसमें से कौन पावर सप्लाई करता है? ये जो पंप है, विद दैट पंप प्रेशराइजेस ऑयल. इट मींस इट इज अ पावर. प्रेशर इज नथिंग बट अ पावर एंड दैट इज सप्लाइड टू दिस डबल एक्टिंग सिलेंडर. तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट हाइड्रोलिक पावर पैक कंटेन्स. हाइड्रोलिक पावर पैक में क्या क्या होता है? तो ये जो मैंने बॉक्स है, बॉक्स में जो जो कुछ कंपोनेंट्स दिखाए मैंने, ये 1 है, 2 है, 3, 4 एंड 5, ये 5 कंपोनेंट्स मैंने दिखाए. ये 5 कंपोनेंट्स किस में आते हैं? पावर पैक में आते हैं. Okay, let's start simple hydraulic circuit to operate or to control the single acting cylinder. अब हम देखेंगे कि एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, उसको ऑपरेट करने के लिए कौन सा सर्किट यूज होता है. एक सिंपल सर्किट हम बनाएंगे जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या करेगा? ऑपरेट करेगा. ऑपरेट करेगा मतलब क्या करेगा? उसके जो दो स्ट्रोक होते हैं, कौन सा भी सिलेंडर है तो उसके दो स्ट्रोक होते हैं. अगर जो पिस्टन है सिलेंडर के बाहर निकलता है तो उसको हम एक्सटेंशन स्ट्रोक बोलते हैं. जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रैक्शन बोलते हैं. सो ये दोनों स्ट्रोक हम कैसे ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट, वो हम देखेंगे. सो हियर there are two circuit diagrams. One circuit diagram shows retracted position of the actuator and this shows the extended position of the actuator. तो ये सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो एक्चुएटर का कौन सा स्ट्रोक होगा? रिट्रैक्शन होगा. ये सर्किट डायग्राम अगर बनाएंगे तो कौन सा स्ट्रोक होगा? एक्चुएटर का एक्सटेंशन स्ट्रोक होगा. तो ये जो सर्किट डायग्राम्स होते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके सिंबल्स यूज़ किए होते हैं. ओके, तो हमने देखा है कि ये टी, ये देखो यहाँ पे हमने कुछ लेटर से लेबलिंग किया है कंपोनेंट्स को. तो वो लेटर का क्या मीनिंग है? तो वो हमने देखा है कि ये जो टैंक होता है, देखो ये एट द बॉटम में क्या होता है? ये टैंक होता है. टैंक को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर भी बोलते हैं, ऑयल रिजर्वायर. इसमें क्या होता है? ऑयल होता है. ओके,
और उसके बाद में होता है ये फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर कनेक्ट होता है जस्ट आफ्टर द रिजर्वायर। ओके, सो ये जो फिल्टर है उसका क्या काम है कि जो ऑयल में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको वो ट्रैप करेगा और प्योर ऑयल वो सिस्टम को सेंड करेगा। ओके, तो ये जो फिल्टर है वो सक्शन साइड को है, पंप के कौन सी साइड को है, सक्शन साइड को है, तो इसको सक्शन लाइन फिल्टर बोलते हैं। ओके ओके, सक्शन लाइन फिल्टर बोलते हैं। अगर ये जो फिल्टर है सक्शन लाइन और डिलीवरी लाइन, और या फिर प्रेशर लाइन और रिटर्न लाइन, इस तरह के दो फिल्टर होते हैं। ओके, सो ये जो है, ये जो फिल्टर है वो सक्शन फिल्टर है, मतलब ये पंप के सक्शन साइड को है, तो इसको सक्शन फिल्टर बोलेंगे, सक्शन लाइन फिल्टर। तो उसके बाद में ये पंप आता है, पंप को क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक मोटर इसको कौन सी एनर्जी सप्लाई करती है, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करती है, और ये पंप कन्वर्ट दैट मैकेनिकल एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। और जस्ट आफ्टर द पंप क्या कनेक्टेड है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व कनेक्टेड है। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करता है, ये सिस्टम को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ये एक सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर सिस्टम का प्रेशर एक सेट प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व ओपन होता है, और जो एक्सेस ऑयल है वो किसको भेजता है, वो टैंक को भेजता है। ओके, जैसे कि प्रेशर कुकर वर्क करता है वैसे ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व ऑपरेट करता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि अगर स्टीम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, वो जो वॉल जो है वो ओपन होता है और एक्सिस जो स्टीम है वो बाहर चली जाती है। जब एक्सिस स्टीम बाहर चली जाती है वो फिर से बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम होता है। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया है, यहाँ पे ये जो पाइप है ना यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, तो क्या करेगा, पंप से ऑयल यहाँ तक आएगा लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा उस केस में, तो ये जो पाइप है उसमें प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उस केस में ये पाइपलाइन बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब मान लो कि ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है इसका 20 बार है, कितना है, 20 है। ओके, ऑपरेटिंग प्रेशर 20 है, मतलब ये सिलेंडर जो है वो 20 बार को क्या करता है, ऑपरेट करता है। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑयल जो है इस जो पाइप है इसमें आ जाता है, तो ऑयल का प्रेशर बढ़ने लगता है 20, 21। तो यहाँ पे हम कुछ ये जो स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग से हम यहाँ पे इसका प्रेशर जो है ना, ओपनिंग जो प्रेशर है हम सेट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 24 बार सेट किया, या स्प्रिंग के विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग हम 24 बार यहाँ पे प्रेशर सेट किया है। ओके, तो प्रेशर बढ़ने लगता है 21, 22, 23, 24। जब 24 बार प्रेशर ऑयल का होता है तब ये वॉल्व ओपन होता है। ओपन मतलब ये इस तरह से ओपन होता है, ये जो यहाँ पे एरो है इस तरह से वो अलाइन हो जाता है, इस तरह से ये वॉल्व ओपन होता है और जो एक्सेस ऑयल अगेन कहाँ पे चला जाता है, टैंक में चला जाता है। तो इस तरह से ये इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी टू द सिस्टम। अगर ऐसा नहीं होता, ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व अगर नहीं होगा तो ऑयल का प्रेशर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक ये पाइप जो है वो बर्स्ट नहीं होता तब तक ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जो है देयर विल बी अ डैमेज टू द सिस्टम। ओके, तो इस तरह से ये पूरा जो है वो पूरा क्या है, इस तरह से पूरा पावर पैक है। ओके, तो ये पावर पैक के बाद में यहाँ पे ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होता है, दिस इज अ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। तो इसका काम क्या है कि जो ऑयल इसमें आएगा उसको डायरेक्शन देना, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का काम है। तो ये उसके बाद में डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व के बाद में ये जो है वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। ओके, तो इसके बाद में ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मतलब उसका एक्सटेंशन स्ट्रोक और उसका रिट्रैक्शन स्ट्रोक, ये डायरेक्शन होती है एक्चुएटर की। तो एक्सटेंशन स्ट्रोक, रिट्रैक्शन स्ट्रोक ये कौन डिसाइड करता है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व डिसाइड करता है। ओके, सो तो इन शॉर्ट क्या होता है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व जो होता है वो दैट कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुएटर। अगर हमको एक्सटेंशन स्ट्रोक चाहिए तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमको रिट्रैक्शन स्ट्रोक चाहिए तो वो यहाँ से कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट द डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ एक्चुएटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो सर्किट है वो कैसे ऑपरेट करता है। ओके, तो यहाँ से हमको फर्स्ट क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट हमको इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी पंप को देगा, तो पंप स्टार्ट होगा। ओके, पंप स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, इस तरह से ऑयल्स जो रिजर्वायर है वहाँ से ऑयल को वो सक करेगा। ओके, व्हेन वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर द पंप विल स्टार्ट एंड पंप विल सक द ऑयल फ्रॉम द रिजर्वायर, और वो ऑयल इस पंप में आ जाएगा एंड देन पंप विल प्रेशराइज द ऑयल। ओके, देन दिस ऑयल रीच एट द जंक्शन, वो प्रेशराइज ऑयल यहाँ पे आएगा।
प्रेशराइज ऑयल जब वो यहाँ पे आएगा तो उसको दो पाथ हो गए, टू फ्लो थ्रू द प्रेशर रिलीफ वॉल एंड टू फ्लो टूवर्ड्स द डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। लेकिन ओके, दिस एट द नॉर्मल कंडीशन दिस वॉल इज ओपन। ये जो वॉल है वो नॉर्मली कैसे होता है, ओपन होता है। अब ओपन है या क्लोज है वो कैसे हम सिंबल से समझे। ये जो एरो है ना, अगर ऑफसेट है, ये जो इनलेट और इनलेट और आउटलेट से अगर वो ऑफसेट है तो ये वॉल है क्लोज। अगर ये एरो इस तरह से इनलाइन आता है इनलेट और आउटलेट लाइन को, तो वो वॉल क्या है, ओपन है। तो ये जो वॉल है नॉर्मली क्लोज होता है। तो okay, this pressurized oil cannot flow through this pressure relief valve because this valve is closed। okay, तो यहाँ से ये नहीं जा सकता है। तो वो कहाँ पे जाएगा, it flows toward the DCB। वो DCB के कौन से पोर्ट को आएगा, P पोर्ट ऑफ द DCB। अभी ये जो DCB है ना वो 3/2 DCB है। कौन सा DCB है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है दैट इज अ 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। ओके, 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। ये जो 3 मतलब क्या होता है, 3 पोर्ट्स। तो इसको 3 पोर्ट्स है। कौन से ये वाला P पोर्ट है। P पोर्ट का मतलब होता है प्रेशर पोर्ट, वो दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पंप। T पोर्ट मतलब टैंक पोर्ट, दैट इज कनेक्टेड टू टैंक। एंड A मतलब एक्चुएटर पोर्ट, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द एक्चुएटर। और इसका दो पोजीशन है। दो पोजीशन मतलब ये 2 स्क्वायर ब्लॉक है, मतलब 2 पोजीशन है। ओके, तो ये 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है। इसको ऑपरेट कैसे करना है, यहाँ पे एक लेवर दिया हुआ है। लेवर हम हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मतलब ये मैन्युअली ऑपरेटेड है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इट इज अ मैन्युअली ऑपरेटेड 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। सो ऑयल रीच एट दिस पोर्ट। ऑयल ये P पोर्ट को आएगा। प्रेशराइज ऑयल जो है इस तरह से वो आएगा। ये जो डायरेक्शन है, ओके, इस तरह से हम डायरेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ से ये प्रेशराइज ऑयल ये P पोर्ट में आएगा। ये जो T है, ये T का क्या मतलब होता है कि पोर्ट जो है वो बंद है, पोर्ट इज क्लोज्ड। ओके, मतलब यहाँ पे ऑयल यहाँ पे आके ये प्रेशराइज ऑयल रुकेगा। ओके, सो दैट विल नॉट फ्लो टू द ए पोर्ट। वो एक्चुएटर को नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ये पोर्ट बंद है, ये पोर्ट को कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से ऑयल रुकेगा। तो यहाँ पे अगर ऑयल रुकेगा तो क्या होगा, पंप तो कंटिन्यूसली उसका काम कर रहा है। पंप कंटिन्यूसली ये जो पाइप है उसमें प्रेशराइज ऑयल को भेज रहा है और ऑयल जो है यहाँ तक आके रुक रहा है। तो ये जो पाइप में उसमें वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर इक्वल टू, ये ऑयल का प्रेशर इक्वल टू द सेट प्रेशर ऑफ प्रेशर रिलीफ वॉल्व। मान लो कि प्रेशर रिलीफ वॉल्व का सेट प्रेशर है 24 बार। तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा। जब वो 24 बार होगा तो ये जो वॉल है वो ओपन होगा। प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा। और जो भी एक्सेस ऑयल है वो कहाँ पे जाएगा, टैंक हो जाएगा। ओके, तो जब नॉर्मल प्रेशर होगा, जब एक्सेस ऑयल रिजर्वायर को जाएगा प्रेशर रिलीफ वॉल्व थ्रू, जब अगेन नॉर्मल प्रेशर आएगा तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। अगर फिर से ऑयल का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर से ये ओपन होकर एक्सेस ऑयल को टैंक को ये भेजेगा। ओके, तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है जो सिस्टम को क्या करता है, सेफ्टी देता है। ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसको पिलॉट लाइन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिलॉट लाइन बोलते हैं। ओके, पिलॉट लाइन। ओके, तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है ना, तो उसमें ये पिलॉट लाइन इनलेट से निकल के वॉल के अंदर जाता है। तो ये इनलेट है, ये आउटलेट है। सो दिस पिलॉट लाइन कनेक्ट्स इनलेट एंड वॉल। ओके, इनलेट एंड वॉल को वो कनेक्ट करती है। ओके, मतलब एक तरह से एक सिग्नल भेजती है कि ये जो इनलेट प्रेशर है ना, यहाँ पे जो प्रेशर है ऑयल का वो 24 बार हो चुका है, अब इस वॉल को ओपन करना है। तो ये सिग्नल भेजती है। जब ये 24 बार प्रेशर होता है तो ये सिग्नल वॉल को जाता है और वॉल जो है क्या होता है, ओपन होता है। तो इस तरह से ये जो पिलॉट लाइन है ना वो सिग्नल का काम करती है। ओके, तो इस केस में इस सिलेंडर में ऑयल नहीं जा रहा है। तो इस जो यहाँ पे एक सिंगल एक्टिंग है, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग जो है ना वह एक्सपांड होता है। स्प्रिंग क्या होता है, एक्सपांड होता है। और स्प्रिंग एक्सपांड होने के वजह से वो स्प्रिंग में पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करता है और पिस्टन जो है इट मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब उसका कौन सा स्ट्रोक यहाँ पे हो रहा है, वो रिट्रैक्शन। पिस्टन इज रिट्रैक्टिंग। पिस्टन रिट्रैक्ट हो रहा है। वो पिस्टन को कौन रिट्रैक्ट कर रहा है, स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक्सपांशन हो रहा है और स्प्रिंग ये जो है पिस्टन पे फोर्स अप्लाई कर रही है और उसके वजह से यहाँ पे रिट्रैक्शन हो रहा है। ओके, सिंगल एक्टिंग में जो रिट्रैक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग। ओके, एंड व्हेन द पिस्टन इज रिट्रैक्टिंग, जब पिस्टन रिट्रैक्ट जब पिस्टन का रिट्रैक्शन चालू है तब यहाँ पे ऑयल होता है। ओके, सो एट दिस साइड देयर इज ऑयल।
सो ओके, व्हेन द पिस्टन इज रिट्रैक्टिंग दैट ऑयल विल कम आउट, वो ऑयल यहाँ से बाहर निकलता है, वो ऑयल जो है यहाँ से बाहर निकलता है। ओके, तो ये जो ए पोर्ट है वहाँ से ऑयल बाहर निकलता है, वो डीसीवी के ए पोर्ट तक आता है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद में दिस ए पोर्ट इज कनेक्टेड टू टी, दैट लो प्रेशर ऑयल फ्लोज फ्रॉम ए टू टी एंड इट गोज टू द टैंक। तो इस तरह से फ्लो पाथ होता है। तो ये जो सर्किट है उसमें कौन सा स्ट्रोक है, एक्चुएटर का कौन सा स्ट्रोक, रिट्रैक्शन स्ट्रोक। ओके, इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड दिस पिस्टन, अगर हम पिस्टन को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन स्ट्रोक चाहिए, तो वी नीड टू चेंज द पोजीशन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो यहाँ पे हमको ये जो लेवर है वो लेवर का ऑपरेट करना पड़ेगा, मैन्युअली हम इसको ऑपरेट करेंगे। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये जो डीसीवी का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी हियर व्हेन वी ऑपरेट दिस डीसीवी देन दिस लेवर, देन डीसीवी विल स्विच टू द नेक्स्ट पोजीशन। ये देखो, ये पोजीशन उसका चेंज हो गया। अब ये नया जो पोजीशन है वहाँ पे कनेक्शन देखो आपके इस तरह से, ये जो पी पोर्ट है ना, यहाँ पर पी पोर्ट है, ये जो पी पोर्ट है दैट इज कनेक्टेड टू ए पोर्ट, ये पी पोर्ट ए पोर्ट को कनेक्ट हो गया, और ये जो पोर्ट है टी पोर्ट है वो ब्लॉक हो गया। ओके, दैट टी पोर्ट इज ब्लॉक। तो इस तरह से वो कनेक्शन हो गए। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस सर्किट वर्क्स। तो जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करेंगे तो पंप स्टार्ट होगा। व्हेन द पंप स्टार्ट इट विल सक ऑयल फ्रॉम द रिजर्वायर एंड प्रेशराइज इट एंड सेंड इट टू द सिस्टम। दिस ऑयल कम्स एट दिस जंक्शन, वो प्रेशराइज ऑयल इस जंक्शन पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद में उसको दो पाथ है, एक तो प्रेशर रिलीफ वाल्व और एक तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अभी प्रेशर रिलीफ वाल्व तो दैट इज वॉल इज क्लोज, सो दिस फ्लो इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से ऑयल नहीं जा सकता है। तो ऑयल जो है इट गोज टू द पी पोर्ट ऑफ द डीसीवी। ओके, so here the P port is connected to A, the pressurized oil flows from P to A, okay, इस तरह से P to A and it enter into the head side of the this single acting cylinder। तो ये जो A पोर्ट है वहाँ से ऑयल इस सिलेंडर के अंदर जाएगा। तो ये हेड साइड होता है और ये रॉड साइड होता है। तो हेड साइड के अंदर ये प्रेशराइज ऑयल जाएगा। सो एज दिस इज अ प्रेशराइज ऑयल इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दिस पिस्टन, ये पिस्टन पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि वो कौन सा ऑयल है, प्रेशराइज ऑयल है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में स्टार्ट होगा। देन पिस्टन स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग, ये जो पिस्टन है इस तरह से इट मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड, मीन्स वी आर कॉलिंग दैट द पिस्टन स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग। तो पिस्टन इस तरह से स्लोली एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा और एट द सेम टाइम दिस स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, वो स्प्रिंग का कंप्रेशन शुरू होगा। ओके, सो दिस लाइक दिस। सो यहाँ पे देखो, ये दिस इज पिस्टन इज फुल्ली एक्सटेंडेड, ये पिस्टन आगे आगे जाएगा और ये डेड सेंटर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग होगी ना दैट इज फुल्ली कंप्रेस्ड, ये स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस्ड हुई होगी। यहाँ पे देखिए आप, स्प्रिंग इज फुल्ली कंप्रेस्ड, दिस इज द फुल्ली एक्सटेंडेड पिस्टन। यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। ओके, तो इस तरह से एक्सटेंशन स्ट्रोक हो। अगर हमको फिर से अगर इसको रिट्रैक्शन स्ट्रोक चाहिए, अगर इस पिस्टन को अगर हम फिर से हमको इस तरह से रिट्रैक्टेड पोजीशन में लाना है, तो हमसे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है उसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लेवर ऑपरेट करो तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल जो है वो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये पोजीशन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से फिर से ऑयल यहाँ से बाहर निकलेगा और ये टैंक में चला जाएगा और ये स्प्रिंग एक्सपांड होगा और पिस्टन को इस तरह से वो लेफ्ट साइड को पुश करेगा, मतलब यहाँ पे रिट्रैक्शन स्ट्रोक होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है उसका एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन स्ट्रोक जो है हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ओके, सो दिस इज हाउ टू ऑपरेट or how to control the direction of the single acting cylinder with the help of this 3x2 direction control valve. Okay, so let's see the simple hydraulic circuit to control or to operate the double acting cylinder. अब हम देखेंगे कि डबल एक्टिंग सिलेंडर को कैसे ऑपरेट करना है, उसका एक्सटेंशन या रिट्रैक्शन स्ट्रोक कैसे ऑब्टेन करना है, ये अब हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज द सर्किट टू ऑपरेट डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ये देखो, ये बॉटम को जो होता है वो पावर पैक होता है। पावर पैक में इलेक्ट्रिक मोटर होती है, पंप होता है, रिजर्वायर होता है, फिल्टर होता है और प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। ये सब किस में आता है, पावर पैक में आता है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, दिस इज अ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये कौन सा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसका टाइप ऑफ एक्चुएशन कैसा है, मैन्युअली ऑपरेटेड है। ये कैसे ऑपरेट होता है, मैन्युअली ऑपरेट होता है। सो इट इज़ अ मैन्युअली ऑपरेटेड। यहाँ से लेवर दिया है, वो लेवर को हम हाथ से ऑपरेट करके इसका पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं। और ये 4x3 है, मतलब क्या कि इसमें 4 पोर्ट्स हैं।
कौन से पोर्ट है, यहाँ पे देखिए ये जो पोर्ट है ना वो P पोर्ट है, ओके। यहाँ पे ये जो पोर्ट है ना वो A पोर्ट है, यहाँ पे ये जो पोर्ट है ना वो B पोर्ट है, और यहाँ पे ये जो पोर्ट है ना वो कौन सा पोर्ट है, T पोर्ट है। इस तरह से 4 पोर्ट है। ये P को प्रेशर पोर्ट बोलते हैं, वो पंप को कनेक्ट होता है। ये A B इसको एक्चुएटर बोलते हैं, ये एक्चुएटर पोर्ट बोलते हैं, ये एक्चुएटर का कनेक्ट होता है। और ये T जो है टैंक पोर्ट है, वो टैंक को कनेक्ट होता है। अभी इसमें फोर पोर्ट्स हैं और 3 पोजीशन। यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे कितने पोजीशन है, 3 पोजीशन है। 3 पोजीशन मतलब क्या कि 3 पोजीशन है, मतलब 3 टाइप के ये जो 4 पोर्ट है ना उसमें कनेक्शंस पॉसिबल है, ओके। 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर पॉसिबल, तो उसको पोजीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटर है ना वो कौन सा पोजीशन है, टैंडम सेंटर पोजीशन है। टैंडम सेंटर पोजीशन में क्या होता है, दैट P पोर्ट इज कनेक्टेड टू T पोर्ट, ओके। पोजीशंस ऑफ डीसीबी, डीसीबी है ना इसको 3 पोजीशन है, तो उसको नाम क्या दिया है, ये 0। ये सेंटर वाला जो पोजीशन है उसको नल पोजीशन बोलते हैं। इसको नल पोजीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये डीसीबी ये नल पोजीशन को होता है तब जो ये जो एक्चुएटर है देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द एक्चुएटर, एक्चुएटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए उसको नल पोजीशन बोलते हैं। एक्चुएटर का मूवमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जो है इस पोजीशन में ऑयल एक्चुएटर को नहीं जाता है, ऑयल डायरेक्टली P पोर्ट से कहाँ पे जाता है, टैंक में जाता है। और ये 1 और 2, ये दोनों 1 और 2 जो पोजीशन है उसको एक्चुएटर पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये जो एक्चुएटर है उसका क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है, मतलब आइदर एक्सटेंशन होगा या फिर रिट्रैक्शन होगा। तो ये दोनों कैसे पोजीशन है, एक्चुएटेड पोजीशन है, वो एक्चुएटर क्या करते हैं, एक्चुएट करते हैं। व्हेन योर डीसीबी इज एट द सेंटर पोजीशन, अगर आपका डीसीबी जो है वो सेंटर पोजीशन को है तो ये सर्किट में ये एक्चुएटर का क्या होगा हम देखेंगे। एक्चुएटर ये ऑपरेट होगा या नहीं होगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हेन वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर इट विल स्टार्ट द पंप, देन पंप सक ऑयल फ्रॉम द रिजर्वायर, ओके। then this it pressurize it, okay, it converts a mechanical energy to pressure energy. that pressurized oil comes at the junction, वो pressurized oil ये जंक्शन पे आएगा, ओके। तो ये जंक्शन के आने के बाद में उसको 2 पाथ है, एक तो डीसीबी की तरफ जाना या फिर वो प्रेशर रिलीफ वॉल्व थ्रू टैंक की तरफ जाना। लेकिन ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो है नॉर्मली कैसे होता है, ओपन होता है। सो ये प्रेशराइज ऑयल या इस तरह से इसमें नहीं जाएगा, ये सीधा ये P पोर्ट को जाएगा। व्हेन द प्रेशराइज ऑयल रीच एट द P पोर्ट, ओके, हियर दिस P पोर्ट इज कनेक्टेड टू T, मतलब सीधा प्रेशराइज ऑयल ये P पोर्ट जो है P पोर्ट से T पोर्ट में जाएगा और T पोर्ट से सीधा वो टैंक में जाएगा। तो ये इस तरह से फ्लो कैसा होगा, पंप टू द P पोर्ट टू T, P टू T, इस तरह से ऑयल फ्लो होगा। ये P पोर्ट से निकलेगा T में जाएगा, P से निकलेगा T में जाएगा, इस तरह से ये फ्लो होगा। ऑयल जो है वो ये एक्चुएटर को नहीं जाएगा क्योंकि फ्लो सीधा P से T को जाता है। So as oil is not flowing toward the actuator, therefore there is no movement of the actuator. Means when the DCV is at the null position, then there is no movement of the actuator. अगर हमको एक्चुएटर का एक्सटेंशन स्ट्रोक चाहिए, ओके, इस तरह से हम एक्चुएटर जो है उसका एक्सटेंशन स्ट्रोक चाहिए तो हमको डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से हमको लेवर ऑपरेट करना पड़ेगा और लेवर को हम किस पोजीशन में लाना पड़ेगा, ये फर्स्ट पोजीशन में हम लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन स्ट्रोक मिलेगा, ओके। सो ये लेवर ऑपरेट करने के बाद में डीसीबी का पोजीशन चेंज हुआ। अब ये डीसीबी ये फर्स्ट पोजीशन को है। तो फर्स्ट पोजीशन में कनेक्शंस कैसे हैं कि ये जो P पोर्ट है दैट P पोर्ट इज कनेक्टेड टू A पोर्ट और ये जो B पोर्ट है दैट इज कनेक्टेड टू T पोर्ट, ओके। तो अभी ये सर्किट कैसे ऑपरेट होगा, व्हेन वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर इट विल स्टार्ट द पंप विल सक ऑयल फ्रॉम द रिजर्वायर, प्रेशराइज इट, ओके, send it to the this P पोर्ट, ओके। सो ये प्रेशराइज ऑयल जो है जब यहाँ पे आएगा, इस जंक्शन पे आएगा, तो इसको 2 पाथ होते हैं, एक टू फ्लो टुवर्ड्स द डीसीवी एंड टू फ्लो टुवर्ड्स द प्रेशर रिलीफ वॉल्व। लेकिन प्रेशर रिलीफ वॉल्व वो जो होता है वो नॉर्मली कैसे होता है, दिस प्रेशर रिलीफ वॉल्व इज नॉर्मली क्लोज होता है, तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व से फ्लो पॉसिबल नहीं है। सो द ऑयल फ्लोज टुवर्ड द P पोर्ट ऑफ डीसीवी, ये ऑयल जो है यहाँ पे आएगा, P पोर्ट को आएगा। Here this P port is connected to A, ये जो P है ना वो A को कनेक्ट है। So pressurized oil flows from P to A, okay, and through the A port of the cylinder, ये सिलेंडर का जो A port है उसमें through this A port this pressurized oil will enter to the head side of the this double acting cylinder, okay, इसको हेड साइड बोलते हैं, इसको रॉड साइड बोलते हैं। तो हेड साइड में प्रेशराइज ऑयल एंटर होगा तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन स्टार्ट होगा। हियर द प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और ये प्रेशराइज ऑयल जो है ना इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दिस पिस्टन, उस फोर्स की वजह से द पिस्टन स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग, पिस्टन इस तरह से
इस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन स्ट्रोक ऑफ द piston. At the same time here there is a low pressure oil. At the same time here there is a low pressure oil. यहाँ पे एक low pressure oil है. पिस्टन रॉड साइड को कौन सा ऑयल होता है, ये लो प्रेशर ऑयल है. ये आप समझ लो कि ये जो यहाँ पे ऑयल है ना, ये हाई प्रेशर ऑयल है, और ये जो ऑयल है वो दैट इज अ लो प्रेशर ऑयल है. ओके, सो दैट लो प्रेशर ऑयल विल कम आउट. यहाँ पे एक बी पोर्ट है, ये बी पोर्ट से ये ऑयल बाहर आएगा. यहाँ पे जो है सिलेंडर का ये दूसरा पोर्ट है, बी पोर्ट है. यहाँ से लो प्रेशर ऑयल बाहर आएगा, एंड दैट लो प्रेशर ऑयल फ्लोज टूवर्ड द बी पोर्ट ऑफ दिस डीसीवी. वो कहाँ पे जाएगा, ये जो डीसीवी का बी पोर्ट है वहाँ पे जाएगा. और एट दिस द बी पोर्ट इज कनेक्टेड टू टी. ये बी किसको कनेक्टेड, टी को. सो लो प्रेशर ऑयल फ्लोज फ्रॉम बी टू टी एंड इट गोज टू द टैंक. ओके, इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा. तो ये सर्किट अगर आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे, इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे तो आपका कौन सा स्ट्रोक मिलेगा एक्चुएटर का, एक्सटेंशन. ओके, देन यू विल गेट द एक्सटेंशन स्ट्रोक ऑफ द एक्चुएटर. ओके, तो इस तरह से एक्सटेंड होते 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 यहाँ तक वो आ गया, समझो पिस्टन यहाँ तक आ गया. दिस इज अ फुल्ली एक्सटेंडेड पोजिशन ऑफ द पिस्टन. इफ यू वांट द रिट्रैक्शन, अगर पिस्टन को हमको रिट्रैक्ट करना है, हमको पीछे लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम फिर से हमको ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हियर. तो यहाँ पे हमने लेवर ऑपरेट किया और ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे डीसीवी आ गया. So let's observe the connections between the ports in the second position. ये the P port is connected to B और A port is connected to T. यहाँ पे आप देखो ये एरो के डायरेक्शन में ही ऑयल फ्लो होगा, रिवर्स फ्लो इज नॉट पॉसिबल. अगर P to A एरो है तो मतलब इसका मतलब है ऑयल जो है P to A फ्लो होगा, सॉरी P to B फ्लो होगा, B to P नहीं फ्लो हो सकता. यहाँ पे जो एरो का डायरेक्शन है वो A to T है, मतलब यहाँ से ऑयल जो है A to T ही फ्लो होगा, T to A नहीं फ्लो हो सकता. ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे देखो कि ये सर्किट कैसे काम करेगा. ये इस तरह से आप कनेक्शन बनाओगे, इस तरह से आप कनेक्शन करोगे तो एक्चुएटर का कौन सा स्ट्रोक होगा ये अब हम देखेंगे. When we start electric motor, it will start the pump. Pump will suck the oil from the reservoir, and again this it pressurize the oil, and the pressurized oil हम रेड कलर से दिखाते हैं. ओके, सो प्रेशराइज ऑयल जो है वो यहाँ इस जंक्शन पे आएगा. ये जंक्शन पे आने के बाद में उसको दो पाथ होगी, एक तो ये प्रेशर रिलीफ फॉल थ्रू और टू फ्लो टूवर्ड द डीसीवी. ये प्रेशर रिलीफ फॉल थ्रू नहीं फ्लो हो सकता क्योंकि प्रेशर रिलीफ फॉल जो होता है वो नॉर्मली कैसे होता है, क्लोज होता है. तो दिस प्रेशराइज ऑयल फ्लो टूवर्ड्स द डीसीवी. ये डीसीवी के कौन से पोर्ट को आएगा, पी पोर्ट को आएगा. प्रेशराइज ऑयल रिच टू द पी पोर्ट. ये द पी पोर्ट इज कनेक्टेड टू बी. प्रेशराइज ऑयल फ्लो फ्रॉम पी टू बी, and through this B port of the double acting cylinder it will enter at the piston rod side or the rod side of the cylinder. जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है उसको कौन से साइड को आएगा, वो रॉड साइड को. ये कौन सा ऑयल है, हाई प्रेशर ऑयल है. दिस इज अ हाई प्रेशर ऑयल. ओके, सो दिस हियर द एनर्जी कन्वर्जन स्टार्ट. ये द प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये जो प्रेशराइज ऑयल है इस तरह से पिस्टन पे ये फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स की वजह से ये पिस्टन will start moving toward the left side. It is called as a retraction stroke. Okay, when the piston starts retracting, तब ये जो इस साइड को जो ऑयल है वो लो प्रेशर ऑयल है. अब ये ऑयल कहाँ से आया है, हमने ये एक्सटेंशन स्ट्रोक जो था, एक्सटेंशन स्ट्रोक के लिए यहाँ पे हमने ऑयल लिया था. अब वो कौन सा ऑयल बन चुका है, वो लो प्रेशर ऑयल बन चुका है क्योंकि उसका पूरा एनर्जी एक्सटेंशन स्ट्रोक में यूज हुआ है. नाउ इट बिकम्स लो प्रेशर ऑयल. अब जैसे पिस्टन एक्सटेंड होता है तो वो क्या करता है, लो प्रेशर ऑयल को इस तरह से वो इट विल फोर्स आउट दिस लो प्रेशर ऑयल. ये लो प्रेशर ऑयल को बाहर निकालता है. ये जो ए पोर्ट है यहाँ पे, पिस्टन जैसे जैसे रिट्रैक्ट होता है इस तरह से पिस्टन जो है इस तरह से रिट्रैक्ट होता है, तो ये लो प्रेशर ऑयल इस ए पोर्ट से बाहर निकलता है और वो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व के ए पोर्ट को आता है. सो हियर द ए पोर्ट इज कनेक्टेड टू टी. दिस लो प्रेशर ऑयल फ्लोज फ्रॉम ए टू टी एंड इट गोज टू द टैंक. तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है. अगर आप इस तरह से कनेक्शन करोगे तो आपको कौन सा स्ट्रोक मिलेगा, यू विल गेट द रिट्रैक्शन स्ट्रोक ऑफ द एक्चुएटर. ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को कैसे ऑपरेट करना है, डबल एक्टिंग सिलेंडर को कैसे ऑपरेट करना है. ओके, तो इस तरह से जो सर्किट मैंने बताया है उस तरह के आप कनेक्शंस एक्चुअल में करोगे तो वो डबल एक्टिंग होगा या सिंगल एक्टिंग होगा, वो ऑपरेट करेगा. ओके, तो इसमें हमने इसका स्पीड कंट्रोल नहीं देखा है. एक आप समझ लो कि हमने सिर्फ देखा है कि एक्चुएटर का हम सिंगल एक्टिंग है या डबल एक्टिंग है, उसका डायरेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हमने देखा. स्पीड अगर आपको कंट्रोल करना है तो
एक एक्स्ट्रा जो वॉल है, फ्लो कंट्रोल वॉल आपको इस सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आप क्या कर पाओगे, उसका फ्लो कंट्रोल कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, थैंक यू।